So, good evening to all of you, and I'm very happy to be with you this evening. And now, I wish to introduce you to the subject of soil fertility, particularly what are the references and study material that can help you to know more and more in this subject. I think, can you see full slide now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. You are seeing learning objectives? Okay. Can you see the slide learning objectives? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, it's sir. fine. So now I'll just tell you some literature, some references, and some website to find out literature and what kind of topics I will cover and general instructions. So first book is Nature and Properties of Soils. Latest edition is available with me. I will send you. You can make a group of this course, and you may be having the group of this course. So I'll share all the books and study material, and that is in PDF form. You can freely use it. You can copy paste. You can take pictures for making presentation for your teaching. So this is number one, and this is the best book, friend, on soils. And particularly if you are interested to learn more on organic matter, more on soil pollution, more on soil water, any aspect related to soil, you can first see this book, Nature and Properties of Soil. Next is Handbook of Plant Nutrition. I have this book, I will share. Another is Soil Fertility Management for Sustainable Agriculture. This is by Dr. Rajendra Prasad, our teacher in IRA. And it was written long back in 1997, but it is still relevant. Particularly, you can read soil physical properties from this book. I will share this book also. Plant Nutrition and Soil Fertility Manual. This is also a good book by Benton Jones. And then Marshner's Mineral Nutrition of Higher Plants. You don't bother much about this. So ये तो आपको कंप्यूटर में मिल जाएगी, कभी जरूरत हुई खोल के देख लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जितना ज्यादा बेस होगा, सपोज कोई चीज आपको एक बुक में नहीं मिलती तो दूसरी में ढूंढते हो, तीसरी में ढूंढते हो, तो ये दीज विल बी एक्ट एज रिसोर्स मटेरियल, आपके पास रहेगा जब जरूरत हुआ। अब मान लो टिश्यू टेस्ट एनालिसिस करना, रैपिड टिश्यू टेस्ट एनालिसिस होती, वो किसी किताब में नहीं मिलती, सिर्फ इसमें मिलती है प्लांट न्यूट्रिशन एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनुअल। सो रैपिड टिश्यू टेस्ट होते हैं कुछ प्लांट के, जो सिर्फ इसी बुक में दिए गए, किसी और बुक में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए सारी बुक आपके काम आएंगी और मैं सारी बुक आपको दे दूंगा, इससे ज्यादा दूंगा मैं आपको। फिर ग्लोसरी ऑफ सोयल साइंस टर्म्स है, ये सोयल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, इसमें आपको तमाम तरह की टर्म्स होती हैं, आप समझते हो, जानते हो। And then one book is by C.A. Black, Soil Fertility Evaluation and Control. So Soil Fertility Evaluation and Control, this book is very good book. And whenever you talk of the subject soil fertility evaluation, so this book is directly hitting this topic, how to evaluate soil fertility. So this book is completely dedicated to the topic that has been allotted to me for, and I have to finish in 2 lectures. So this is really very big subject, but we can take the best one from the book. It is not necessary to read or understand each and every page. We can take the useful things from this book. And Mineral Nutrition of Plants, Principles and Practices. This is by Epstein. This is also good books. So whatever books I have, I can share. This is Textbook of Plant Nutrient Management. This is published from Indian Society of Agronomy. And this is, friend, this book I can recommend to you, but it is not available free of charge. And there is no PDF file of this book with me. If you are interested, if you want, you can purchase it from Indian Society of Agronomy. But I do not have PDF of this book. And this book has several chapters on soil fertility, like history of soil fertility, soil biology, soil carbon. It is by Ratan Lal, and soil history is by Tandon. So there are some good authors in this book. And of course, sometimes we are asked what are the journals related to soil fertility. So Plant and Soil, Nutrient Cycling in Agroecosystem, Soil Science Society, for number of journals are available.
And then these are the websites where we can find more information about the soil fertility. For example, fertilizer.org. It gives very good information about fertilizer. And then soils.org, agronomy.org. So these websites are excellent. IPNI, International Plant Nutrition Institute, IPNI website. So this is also good. And they have got some job opportunities also, IPNI. And so many FAI Delhi, this Fertilizer Association of India office is in Delhi. And they publish Indian Journal of Fertilizer. Before it was known as Fertilizer News. And in Hindi they publish खाद पत्रिका. ये 2 जर्नल निकालता है, आपको शायद पता हो. तो आप दोनों लोग एग्रोनॉमी के हो, तीनों लोग, या कोई और सब्जेक्ट है आपका? नहीं, एग्रोनॉमी है सर। एग्रोनॉमी है, ठीक है जी एग्रोनॉमी सर। मैडम का भी एग्रोनॉमी? जी सर। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हमारी लाइन एक सी है. फिर कोई दिक्कत, मैं सोच रहा सॉइल साइंस के होंगे आप, इसलिए ठीक है. तो आपके जो टॉपिक हैं वो नेचुरली मुझे जो दिया गया है सॉइल फर्टिलिटी इवेलुएशन दिया गया, ठीक है. और बाकी जो है ये अलग के टॉपिक हैं, धोखे से स्लाइड में आगे. बट इन ब्रीफ आई कैन डिस्कस some factors that affect the growth of the plant, if you like. I can just tell you definition of soil fertility, if you like. Did you study these subjects, like what is soil fertility, what are factors of soil fertility, what are principles of soil fertility, what are the components of soil fertility, etc. What is the current status of soil fertility, how soil fertility decline, कम कैसे होती है soil fertility, ये सब आपने पढ़ लिया या पढ़ना है, या कोई पढ़ाएगा ही नहीं? Sir, we have studied this previously, but if you tell us the latest data, it will be very beneficial. Okay. So actually what I will do, because I am not supposed to teach you that subject, I will share my PPTs. I have many PPTs on this subject, on, for example, overview and importance of soil fertility. On every topic, I have full PDF of PPT. I'll share those PPTs and you can go through them. And because you have already learned something related to these topics, but latest things, for example, current status of soil fertility. For current status of soil fertility, I have updated my lecture where you can get the latest data of soil fertility in India. If we analyze soil fertility of India now, more than 90% soils of India are deficient in carbon. More than, say, 99% soils of northern states, particularly Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, are deficient in carbon. Similarly, they are deficient in nitrogen. So I have the data. I'll share with you current status of soil fertility in India. And so far, soil fertility, if I start with factors affecting plant growth. So there can be 2 factors that affect the growth. First factor is genetics. Second factor is environment. You know, in agriculture, if we grow the crops, there are 2 factors that affect the growth of the plant. First is your genetics, and second is your environment. So genetics means what kind of varieties we are using, what kind of plants we are using. The growth of hybrids and high-yielding varieties more. They give you more yields compared to conventional variety or traditional varieties. So high-yielding variety, the growth of high-yielding varieties is more. So therefore, high-yielding varieties or hybrids would require more nutrients. उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी जो हाइब्रिड्स होंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ फास्ट होती है. जैसे धान का केस आप लीजिए, सो धान में टिल्लिंग ज्यादा होती है, खास करके जो हाइब्रिड धान आप लेते हैं. और अगर आप ट्रेडिशनल बासमती वैरायटी लेते हैं तो उसमें टिल्लिंग कम होती है. तो जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कंपेयर टू कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वैरायटी. तो इसीलिए जो हमारी ग्रोथ है और यील्ड है, वो आपके जेनेटिक फैक्टर से अफेक्टेड होती है. दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर.
जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आउटसाइड फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे जो ग्रोथ है प्लांट की उसको अफेक्ट करते हैं। इसमें जैसे फैक्टर्स आते हैं हमारे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपका वाटर है, वाटर अफेक्ट्स, और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लांट्स वांट्स प्लस लाइट, wants WANTS, wants plus light. It wants W for water, A for atmosphere, N for nutrients, T for temperature, and light. So these factors are very, very important. They are abiotic in nature. They affect the growth of the plant. Temperature, temperature is very, very important. And temperature affects physiological processes in the plant, like it affects the uptake of water, uptake of nutrients. So overall temperature is very, very important. Similarly, about light. So in case of light, there are three things. One is intensity of the light, how bright, the brightness of light is known as intensity of light. If you have more and more bright light, that means its intensity is more. So plants love to have more intensity of light, but up to a certain limit. If you go beyond a certain limit of light intensity, their growth is adversely affected. So for example, haldi, adrak, these kind of plants, they are shade-loving plant. They do not want high light intensity. But some plant like rice, all tropical plants like maize, rice, they love more light intensity. But plants like wheat or some winter crops, they require less light intensity. So light intensity affects the growth of the plants. Similarly, light duration and light quality. Light duration means, short day plant, long day plant, and day neutral plant have been classified. Similarly, light quality. In red light, you got maximum photosynthesis. So, in blue light, you get maximum photosynthesis, and in green light, you get lowest photosynthesis. However, under field conditions, you cannot keep red light. Red light हमेशा के लिए नहीं कर सकते, बहुत महंगी होगी. Red light can be given to the greenhouses. Under greenhouse conditions, we can give red light. So these factors affect the growth of the plants, and you can go on adding these factors like management factors. Management factors are agronomic factors. All kind of cultural operations, starting from sowing time, right seed rate, right depth, and right weed management. All these things, nutrient management, all affect the growth of the plant. So this is how the growth is very, very important. And why do we want more growth? Why do we want more growth? So more growth is required to get more yield. If growth is not sufficient, if your tilling is not proper in cereal crop, in pulses you need this branching. More branching in pulses results in more yields. So if these kind of things are not there, then your growth will be less. So therefore, for higher yields, we also need good growth of the crop. So, and finally, if we want higher yield, Why we want higher yields? For good economic returns. So overall, the basic purpose of crop production by the farmer is to get better returns, to get more money. To get more money, more profit, you need more yield. To get more yield, you need better growth, you need optimum growth. So therefore, to get the optimum growth, farmer use different inputs. They use fertilizer, they use nutrients, they use seed, they use machinery, whatnot. They use variety of resources and inputs to produce the crop. So final aim is to get more and more money, more and more profit. So this is how growth is very, very important. Finally, good growth gives you better results, better profit from crop production. Any question from this regarding growth? No, sir. ठीक है. Now आपको idea हो तो soil fertility क्या होती है? What is soil fertility? हाँ, Abdul, do you have idea
मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? सर न्यूट्रिएंट स्टेटस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो सॉइल के अंदर होता है, प्लांट्स को कैसे यूज करता है। वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है आपकी बात कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस होता है। तो बिल्कुल सही बात है। किसी सॉइल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं। जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हम फर्टाइल कहते हैं, हाई फर्टिलिटी। और जिसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम लो फर्टिलिटी सॉइल कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसको और थोड़ा सा नमक मिर्ची लगा के हम कह सकते हैं, जैसे it is status of the nutrients or capacity of the soil to supply nutrients in adequate and balanced amount. ये और जोड़ लेना इसमें, capacity of soil to supply nutrients in adequate means पर्याप्त मात्रा में हो और सही अनुपात में हो, बैलेंस्ड अमाउंट, इसको हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। अब इसमें क्या नाम, इसके प्रिंसिपल होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी के 3 प्रिंसिपल होते हैं जो मैं बता देता हूं आपको। एक होता है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिविंग ने दिया था, आपको पता होगा। और दूसरा होता है, इसमें दूसरा प्रिंसिपल सॉइल फर्टिलिटी का होता है, Michaelis law, sir. हेलो, Michaelis law, sir. हाँ नो, मिचेलिस लॉ नहीं है अभी। अभी तो हम बात कर रहे हैं इसकी प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मिचेलिक लॉ अलग है, वो भी एक तरह से लॉ ऑफ मिनिमम से इन्फ्लुएंस्ड है। वो बाद में आया था मिचेलिक लॉ, वो 1909 में आया था, मिचेलिक ने दिया था। और ये जो लॉ ऑफ मिनिमम है 1840 में आया था। जो जर्मनी का केमिस्ट है लिविग, निकोलस जस्टस वॉन लिविग, he gave this law of minimum in 1840. So based upon his principles, black men developed the law of limiting factors. The law of limiting factor is related to photosynthesis, supply of carbon dioxide and other constituents. So fundamentally they are similar laws, but proposed by different people for different things. So this law of minimum is very very important. And number 2 is law of synchrony. मैं बताऊंगा सिंक्रोनी क्या होता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट की वो डिमांड के हिसाब से हो। यानी अगर हमारी सॉइल फर्टाइल है, अगर इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, then it should meet the requirement of the plant. So plant will demand certain amount of nutrient at a particular growth stage. So at that time, soil should be able to supply sufficient quantity of that nutrient. तो ये होता लॉ ऑफ सिंक्रोनी। सिंक्रोनस होता ना एक साथ, जैसे हमारी फसल पकती है तो हम कहें कि सारे पौधे एक साथ पकते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी, एक साथ सब जो है वो। तो सिंक्रोनी का मतलब है कि डिमांड के हिसाब से हमारी सोयल में अगर दम है, कैपेसिटी है, तो वो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की देती रहे। तो ये भी दूसरा प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल लॉ ऑफ मिनिमम है। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए इसेंशियल है, सही अमाउंट में हो, राइट अमाउंट में हो, राइट प्रोपोर्शन में हो। अगर एक भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट डेफिशिएंट है तो वो बाकियों के जो यूज है उसको एडवर्सली अफेक्ट करेगा, यानी वो मिनिमम क्वांटिटी में एटलीस्ट हर एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए, तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे दाल सब्जी और चावल रोटी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम नमक डालना भूल जाए तो उस खाने को कोई नहीं खाएगा, कोई पसंद नहीं करेगा। तो जो बाकी, सिर्फ नमक की वजह से बाकी खाना बेकार हो गया। सिर्फ एक एलिमेंट की कमी से बाकी एलिमेंट्स का यूज प्लांट प्रॉपर नहीं कर पाता। तो यही आपका लॉ ऑफ मिनिमम होता है। ये इंपॉर्टेंट लॉ है और इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो इसके बारे में। और तो 2 प्रिंसिपल हो गए मैंने बताया सॉइल फर्टिलिटी के, एक तो लॉ ऑफ मिनिमम और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनी। और तीसरा होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब है कि व्हाट एवर वी हैव रिमूव फ्रॉम द सॉइल, जब हम व्हेन एवर वी हार्वेस्ट द क्रॉप, जब हम अपनी फसल उगाते हैं, तब उस समय फसल के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स
फसल में ही चले जाते हैं। हम जानते होंगे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल के साथ चले जाते हैं, तो सोयल में डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे लीच कर जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग किया जाए। मतलब जो फसल के अवशेष हैं या जो हमने हार्वेस्ट किया है उस मटेरियल का, दाने को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं, दे शुड बी रिटर्न बैक टू द सोयल। मिट्टी को वापस किया जाए, इसी को रिसाइकलिंग कहते हैं। तो अगर सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी है हमें और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी देनी है, तो इन 3 नियमों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ मिनिमम हमें बताता है कि हमें बैलेंस फर्टिलाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ ऑफ मिनिमम यही तो कह रहा कि कोई एक एलिमेंट अगर कम है तो वो जो दूसरे का यूज है उसको भी अफेक्ट करेगा एडवर्सली। तो इसका मतलब ये होगा जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है हमें बैलेंस फर्टिलाइजेशन करना चाहिए। तो एक तरह से इसको भी आप इनडायरेक्टली बैलेंस फर्टिलाइजेशन को भी प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कह सकते हैं। दूसरा सिंक्रोनी मैंने बताया था, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले, और तीसरा साइकिलिंग बताया था। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं सॉइल फर्टिलिटी के। अब सवाल आता है कि सॉइल फर्टिलिटी कम क्यों होती है, डिक्लाइन क्यों होती है। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन के 3-4 रीजन है जो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी मृदा आज उर्वर है, आज फर्टाइल है, टुमारो इट कैन लूज इट्स फर्टिलिटी, टुमारो इट कैन बिकम बैरन और लेस फर्टाइल। तो व्हाट इज द रीजन? नंबर 1 टॉप मोस्ट रीजन इज सॉइल इरोजन। मिट्टी का कटाव होता रहता है, किसान को पता नहीं लगता। तो नेचुरली जब कटाव होता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें कार्बन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एंड इट आल्सो हैव मोर माइक्रोबियल पॉपुलेशन। तो मिट्टी के हवा या पानी से ये अगर बह जाती है, इट इज इरोडेड, देन यू लूज फर्टिलिटी। नंबर 1। नंबर 2 इज योर न्यूट्रिएंट माइनिंग। जैसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग का मतलब खनन होता है। जैसे हम कोल की माइनिंग करते हैं या तेल की माइनिंग करते हैं, मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करने का मतलब ये है कि आप वहां से उस मटेरियल को निकाल रहे हो, वापस कुछ भी नहीं दे रहे उसमें। दिस इज माइनिंग। इसी तरीके से सोयल फर्टिलिटी में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हम प्लांट के अंदर हार्वेस्ट करके दूर ले जा रहे हैं, बट जितना न्यूट्रिएंट हमने रिमूव किया है उतना हम वापस नहीं करते मिट्टी को। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट माइनिंग, न्यूट्रिएंट माइनिंग की वजह से। और तीसरा होता है सॉइल की फिजिकल कंडीशंस अगर खराब हो, फिजिकल कंडीशंस जैसे वाटर लॉगिंग हो जाए सॉइल में, तो नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स के लॉसेस हो जाते हैं। आपका अगर सॉइल का पीएच खराब हो, आपकी सॉइल जो है एल्कली सॉइल हो, तो उसमें डिस्पर्सन डिस्पर्सन हो जाता है सोडियम का, तो उसमें भी आपकी जो है फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है और प्लांट न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं। तो कुल मिला के और 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है। इसमें आप ये भी समझा सकते हैं कि अगर हम 1 टन धान का, गेहूं का या मक्का का, फॉर एवरी टन हार्वेस्ट ऑफ ग्रेन ऑफ मेज, wheat and rice, we remove about 20 to 22 kilograms of nitrogen. 1 टन अगर हम दाना एक पैदा करते हैं तो उसमें हमारा 20 से 22 किलो नाइट्रोजन चली जाती है। तो अगर 5 टन ईल्ड हुआ आपका राइस का, व्हीट का या मेज का, तो अराउंड 100 to 110 किलोग्राम्स नाइट्रोजन हार्वेस्ट हो जाती है, और बहुत बड़ी अमाउंट में फास्फोरस, पोटाश हार्वेस्ट हो जाते हैं, अपटेक हो जाता है उनका। हार्वेस्ट का मतलब अपटेक हो जाता है और वो वापस खेत में नहीं आते। तो ये बताया जा सकता है कि माइनिंग में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उतना किसान वापस नहीं डालते। एंड अगर हमारी सॉइल फर्टिलिटी क्या नाम कमजोर हो गई, इफ इट हैज वीकेंड, अगर इनफर्टाइल हो गई, लेस फर्टाइल हो गई सॉइल, देन हाउ टू improve it? How to improve it? That is known as management. Soil fertility management is done to restore the soil fertility, to improve the soil fertility. उसको हमें improve करना है, तो that is your soil fertility management और improvement. In this case, सबसे पहले तो इरोजन की जैसे प्रॉब्लम आई, तो हम इरोजन को प्रिवेंट करें, ऐसे मेजर्स लाएं अपने फील्ड पे, अपनी सोयल में, जिससे कि इसके इरोजन में कमी लाई जा सके। तो आप जानते होंगे इरोजन कैसे कम किया जा सकता है। वाटर इरोजन और हो चाहे आपका विंड इरोजन हो, इसके कम करने के क्या उपाय है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे बड़ा सिंपल उपाय होता है, मल्चिंग कर दें।
मल्चिंग करने से आपकी जो वो है कंजर्व हो जाती है अपर लेयर सोयल। वेर एवर पॉसिबल किसानों को मल्चिंग करके सोयल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो आप जानते हो, सोयल कंजर्वेशन मेजर्स पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है अपने आप में, तो उसको रोकना है। दूसरा, जैसे न्यूट्रिएंट माइनिंग की बात हुई थी, एक होता है न्यूट्रिएंट माइनिंग, इसी से मिलता जुलता होता है डिप्लीशन। न्यूट्रिएंट आपका डिप्लीट हो गया, कम हो गया, तो उसमें यही करना कि आपको सोयल टेस्टिंग के आधार पे न्यूट्रिएंट को अप्लाई करना है। The required quantity of nutrient should be applied based upon soil testing, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी कम ना हो। और इट शुड बी अप्लाइड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, वो करके हम फर्टिलिटी को रेस्टोर कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, FYM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, तो इस तरह से वी कैन इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्रॉप रोटेशंस, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशंस हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्टोरिंग सोयल फर्टिलिटी। अगर फर्टिलिटी खराब होगी और हमें रेस्टोर करना है, तो हमें क्रॉप रोटेशंस फॉलो करने चाहिए। क्रॉप रोटेशंस की अपनी वैल्यू है सोयल फर्टिलिटी में। अगर हम इसमें लेग्यूम्स ले लें क्रॉप रोटेशन में, एटलीस्ट एक साल में 3 क्रॉप लेते हैं या 4 लेते हैं या 2 साल में 5 क्रॉप लेते हैं, तो एक क्रॉप कम से कम लेग्यूमिनस क्रॉप होनी चाहिए अगर फर्टिलिटी हमें रेस्टोर करनी है। ये लेग्यूम्स जो होते हैं ये आपकी नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। इसके अलावा ये सोयल कवर का भी काम करते हैं। कोई जैसे लोबिया उगाता है, कोई ढैचा उगाता है, कोई सनई उगाता है, अगर ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो दे आल्सो कवर द सोयल। कवर करने से आपका इरोजन भी कम होता है और न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ते हैं। दूसरा काम ये क्रॉप्स क्या करती हैं कि सोयल में हमारे न्यूट्रिएंट्स लीच कर जाते हैं। न्यूट्रिएंट थोड़ा सा, मतलब जैसे शैलो रूटेड क्रॉप है आपका, राइस और व्हीट है जैसे, इनकी रूट डेप्थ 15-20 सेंटीमीटर होती है बस। 99% रूट्स इनकी 15-20 सेंटीमीटर सोयल डेप्थ में आ जाती है। तो जो नीचे न्यूट्रिएंट पड़े हैं 15-20 बियॉन्ड 15-20 सेंटीमीटर भी तो मिट्टी में नीचे न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, वो आइडल पड़े हैं, उनका कोई यूज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम डीप रूटेड क्रॉप लेते हैं जैसे लेग्यूम है, तो जो लोअर लेयर में न्यूट्रिएंट्स है वो भी ये डीप रूटेड क्रॉप अपटेक कर लेती हैं और अपनी बॉडी का पार्ट बना लेती हैं। दैट वो जो न्यूट्रिएंट है जो बेकार पड़ा था, वो प्लांट की लीव्स में आ जाता है, स्टेम में आ जाता है, अलग अलग पार्ट्स में आ जाता है। तो जो उसकी एक तरह से रिसाइकलिंग हो रही न्यूट्रिएंट्स की, जो वेस्ट था, और फिर आप उसको मिट्टी में मिला दीजिए। आपकी मूंग है उसकी फली तोड़ लीजिए, तो जो रेजिड्यू है मिट्टी में मिला दीजिए, या ढैंचे की ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में। तो ओवरऑल मैंने यही बताया कि सोयल फर्टिलिटी जो कोर्स है आपका, वो पर्पस यही है कि सोयल फर्टिलिटी जो खराब हो गई, डिप्लीट हो गई है, उसको हमें इम्प्रूव करना है, उसको हमें एनहांस करना है, उसको हमें मेंटेन करना है। तो उसके लिए 4-5 चीजें हैं जो मैंने बताई, उसी पे सारा कोर्स टिका हुआ है हमारा। उसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन है। माइनिंग रोकने के लिए हमें क्या करना है, सॉइल टेस्टिंग के बेस पे न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, एंड न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस फर्टिलाइजेशन करना चाहिए। न्यूट्रिएंट की सप्लाई थ्रू INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से करनी चाहिए। और क्रॉप रोटेशंस जो हमारे हैं, जो हमारे फसल चक्र है, उनका भी सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में बहुत अहम रोल होता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, तो हमारी फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी। इसके अलावा एक लास्ट चीज और है इसमें, वो है जो केमिकल्स हैं हमारे, जो हर्बिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो हमारी सॉइल में आने लगे। पॉलीथीन हमारी सॉइल में आने लगी है आजकल, रैपर्स आने लगे हैं, हैवी मेटल्स हमारी सॉइल में आ जाती है। अगर हम सीवेज वाटर से इरिगेशन करते हैं, अर्बन एग्रीकल्चर, सेमी अर्बन एग्रीकल्चर में, तो वहां पे हमारे हैवी मेटल्स थ्रू इरिगेशन वाटर, थ्रू सम फर्टिलाइजर आल्सो, और पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारी सॉइल तक आ जाते हैं। अगर सॉइल में हमारे पेस्टिसाइड आ जाते हैं, तो ये हमारी सॉइल बायोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं। आज आप कभी धान के खेत में जाए, तो आपको जो अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, वो देखने को नहीं मिलता। पहले 20-30-50 साल पहले मिट्टी में बहुत सारे केंचुए होते थे, अब मरने लगे केंचुए। सो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, मैक्रोब्स की एक्टिविटी है सोयल में, वो भी हमारी कम हो जाती है। तो पेस्टिसाइड यूज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड यूज। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, उससे हमारी फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। यानी उन चीजों को हम फर्टिलिटी में भी जोड़ सकते हैं। कम से कम केमिकल्स हमारी सोयल के अंदर जाए, तो हमारी फर्टिलिटी
सो ये मैंने 5-6 पॉइंट बताया जिससे हम सॉइल फर्टिलिटी को रेस्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ठीक है, हम एक किसान के पास जाते हैं या वैसे ही हमें कोई मिट्टी दिखा दे, कोई सैंपल दे दे, एंड दे कैन आस्क टेल द स्टेटस ऑफ फर्टिलिटी इन माय फील्ड, मेरे खेत की फर्टिलिटी का स्टेटस आप बताइए क्या है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? वी विल इवेलुएट द फर्टिलिटी. So that is the main topic that has been assigned to me. So I'll start my lecture today from the topic that is evaluation of soil fertility. But you are free to ask questions. Whatever has been discussed up to now, you can ask any question related to what I spoke. So do you have questions? जैसे कि आपने सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बताया, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है सर, वो हम कहाँ से उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? जैसे बहुत सेग्रीगेटेड सोर्सेस है, स्कैटर्ड सोर्सेस है, तो मतलब हम कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं? Madam, I have a presentation. I have a presentation. In that presentation, latest data, complete information is available. And I will share, you can make a group, or you all three, it is better, you all three people send me your Gmail account. Yes. Everybody has Gmail account, Hmm. because through Gmail we can send larger files. Heavy Yes. files are there. Some files may be 200 MB, or of course maybe 100 MB, like book of Brady, Nature and Properties, also heavy book. So you all three please share, send me by WhatsApp your emails, and then I will continuously share whatever I have in soil fertility. I will share everything. I have no hesitation in sharing my PowerPoint presentations that you can use for your study or teaching purpose. That is Yes. free of any copyright, no problem. Yes. So in one presentation, I have exclusively on status of soil fertility. So this story started long back. I have history also. So when English people were there, so one Albert and some, I just missed the name. So complete history is there, history of soil testing in India, evaluation of fertility in India. So in 1940s, they found that 50% soils are deficient in nitrogen in 1940s. And then many reports came about status of soil fertility in India. And then the latest one was published in 2002 by Motsara, 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 who gave data that so much percentage of soils in India have medium status of carbon, high status of potassium, or all these nutrients. So those kind of information are there. After that, people from Indian Institute of Soil Science, Bhopal, they analyze thousands of samples from whole India, and they have given their data about nutrient deficiencies or status of nutrients in soils, Indian soils. The latest one is from National Soil Health Card Scheme, which is more acceptable. So I have compiled data for 2 cropping seasons, 2 cycles for 4 years. Their data was available on the internet, on their website, and I have taken average of 4 years, and then reporting to and made some summary from out of that, which is authentic, which is more authentic. So you will see that, suppose you want to know what is the status of phosphorus in Haryana soils, in UP soils, so you can see that what proportion of Haryana soils have medium nitrogen, high level of nitrogen, or so on. So all these are available. Don't worry, I will share. Maybe tomorrow or day after tomorrow. Once I get your email, I'll send you. So these kind of information are available with us, and this is good also. And now you would surprise that up to now we were having soil fertility classes, 3 classes for carbon, 3 classes for phosphorus, potassium, and so on. But now they have made 5 classes. 5 classes, soil fertility classes of fertility. Number 1, very low. Number 2, low. Number 3,
high, no, I'm sorry, low, very low, medium, high, very high. Low, very low, low, medium, high, very high. So these are 5 classes. So up to medium means very low, low and medium. The government is saying that it is insufficient. Starting from very low, low up to medium, government is saying that up to medium, your fertility is having insufficient level of that nutrient. Now they have only 2 level, insufficient or sufficient. या तो इस तरफ हो आप या उस तरफ हो. अगर आपकी हाई और वेरी हाई है तो सफिशिएंट हो. आपकी मीडियम, लो, वेरी लो हो तो आप उस न्यूट्रिएंट में इनसफिशिएंट हो. सिर्फ 2 लेवल है. आप जो मेजर न्यूट्रिएंट है आपके एनपीके और कार्बन, इनके लिए यही क्राइटेरिया है. आते हैं अब माइक्रो न्यूट्रिएंट पे. माइक्रो न्यूट्रिएंट पे गवर्नमेंट ने 2 ही क्लास रखे हैं. एक क्रिटिकल लेवल होता है. अगर क्रिटिकल लेवल से नीचे है तो गवर्नमेंट बोलती है इसको इनसफिशिएंट है. न्यूट्रिएंट क्या हमारा इनसफिशिएंट है, और क्रिटिकल लेवल के ऊपर अगर है तो दैट इज सफिशिएंट. जैसे जिंक का जो क्रिटिकल लेवल होता है सॉइल में वो 0.5 ppm होता है, शायद 0.5 ppm है, 0.5 ppm. तो 0.5 ppm आई विल कंफर्म इट. अगर 0.5 और 0.2 ppm है शायद, आई विल चेक इट. सपोज इट इज 0.2 ppm. सो 0.2 ppm अगर है या उससे कम है then it is low. If it is or insufficient, if it is more than 0.2 ppm, then it is sufficient. So there are 2 classes only, insufficient or sufficient. So that kind of rating chart is available with me. I will share. It is already available in the presentation. Okay. Any other suggestion, question, discussion you wish? Or you can demand also any, suppose now you forget what you need in this course, because I have been teaching it for so long, this course, and interest also. So I have most of the things related to this course. Okay, so you will not have any doubt, any kind of doubt, they will be cleared. And we go teaching from our great teacher, Dr. Rajendra Prasad. The place where I am sitting, this is a lab, PG lab, postgraduate lab, and this is soil fertility lab, our soil fertility lab. Here our students work for analysis of soil, plant, water samples for different nutrients. So I'm also looking after this lab. So got some idea about this subject. So you can take benefit of this. Okay. So now I will open the next presentation. Just a minute, I'm just opening the other presentation. So friends, we continue with the topic, and recording is also continuing, I think. Yeah. So now we go to evaluation of soil fertility, main topic. So the purpose of this lecture, or this part of this lecture, is to explain the meaning and need of soil fertility evaluation. What is soil fertility evaluation? What do we mean by evaluation? And describe different methods for evaluation of soil fertility. Now, before going into the detail, I would like to discuss some difficult words, some kind of terminology or glossary. For example, what do we mean by an available nutrient? Many times we say that what is the available nitrogen, what is total nitrogen, what is available phosphorus in the soil, like that. So available nutrient is form of a plant nutrient in the soil. It can be in the soil, fertilizer, or any organic material that is immediately or potential available for the plants. So these are the forms of plant nutrient, either in soil. In soil, for example, for nitrogen, we have available form as ammonium and nitrate.
For phosphorus, we have H2PO4, HPO4. These are available forms. And in fertilizer also, we have phosphatic fertilizers. In phosphatic fertilizer, some are readily available, like single superphosphate or DAP, diammonium phosphate. Whatever phosphorus is there in these fertilizers, it is in available form. But if you see dicalcium phosphate or tricalcium phosphate or octacalcium phosphate, this octacalcium phosphate is actually rock phosphate. So in rock phosphate, there is zero water soluble phosphorus. So you cannot get any phosphorus immediately from the octacalcium phosphate or tricalcium phosphate. So therefore, you do not have phosphorus in available form in rock phosphate. So you have in available form only in single superphosphate, triple superphosphate, or diammonium phosphate like fertilizer. So that has to be there. Or sometimes organic materials can also have some available nutrients. Suppose you take farmyard manure. Most of the nitrogen is in organic form in farmyard manure. But there may be still some nitrate or some ammonium nitrogen even in the farmyard manure. So that proportion is your available nutrient. Control plot, you are agronomy student, agronomy people. So you understand what is control means, where you are not applying any fertilizer or any treatment. That is your control plot. Element, it is the purest form of the matter. Matter, solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas are the matter. Anything which occupies the space and have some weight or have some mass is called as matter. And matter are of three kinds: solid, liquid, and gas. So these solid, liquid, gas, matter are composed of elements. So any matter which is having the purest form of the atoms, you can come at atom level, atomic levels, is your element. So one kind of element will have all atoms which are similar, which are exactly similar. So element is a pure substance which is composed of chemically similar atoms. That is your element, characterized by its unique atomic number. So this is your element. So these are some basic things that are used in fertility, soil fertility: element, compound, mixture. I think we know it. Just refreshing your memories. Now see F-test. F-test, you would surprise why I have put this F-test here. So what happens when you go for soil testing crop response, or when you go for development of regression equations or response curves in agronomy or fertility? They are quite common. So you apply different doses of fertilizer and you want to have optimum dose of fertilizer. Then you make some quadratic equations, and those quadratic equations are developed by using F-test. F-test is needed to test the equation, whether it is quadratic equation or not. So F-test is quite useful in your design of experiment when we compare different treatments. So F-test is used. This is F name is for Fisher. So I think everybody knows here what is F-test. So this is seen to judge the significance of variances or significance of means. So the statistical test in which the test statistic has F distribution under the null hypothesis, used for testing equality of variances or equality of means, ANOVA, and significance of regression models. So this F test is important. And then leaf color chart, leaf color chart is used to apply nitrogen. Top dressing of nitrogen is done with the help of leaf color chart. And plant sampling, I will discuss in detail how soil sampling and plant sampling is done in this lecture, maybe today or tomorrow. Then remote sensing. This is the new approach of soil fertility evaluation. You can indirectly evaluate the soil fertility by remote sensing. I will discuss this in detail. The collection of information from an object or surface without any direct contact. So that is your remote sensing. Then soil testing, it is also known as soil analysis, usually conducted to estimate the plant available concentration or status of nutrients in soil with different objectives.
SPAD meter is your chlorophyll meter. It measures the chlorophyll. So indirectly, it gives you some reading, and based upon that, you can correlate it to the chlorophyll content, and which is directly in proportion to the nitrogen status. Now, friends, we come to the real topic, that is soil fertility evaluation. What is meant by soil fertility evaluation? So process of estimating the amount of native and residual nutrient elements which could be available for use by growing crops in particular soil, and the amount of fertilizer to be supplemented for profitable crop production. So let me explain it further. So through this soil fertility evaluation, we measure the availability of the nutrients, simply availability of the nutrients, whether they are native, and residual nutrients means in the last season, you must have used some fertilizer or some manures. So whatever is contributed by that, that is your residual nutrient. And rest is actually cumulative nutrients. Cumulative nutrients means year after year, some proportion of organic manures is not used. Suppose this season you have put some 10 to 12 tons of farmyard manure in your feed, and you have grown a crop. So whatever nitrogen or nutrients are there in this 10-ton FIM will not be used by the first crop. So whatever is being used by the first crop, that is your direct effect. Okay, then you have taken next crop. So whenever you have taken the next crop, it will take up again part of the nutrients released by the organic manure, released by the farmyard manure, which is called as residual, because it was left over. Third crop when you take, so this cycle will go on. But with every season, with every year, little amount of nutrients will still remain in the soil that will not be used. Because next year or next to next year, you will also add some manure. So it gets accumulated. Some gets accumulated from several years. That is your cumulative effect. In agronomy, we have three kinds of effect: direct effect, residual effect, and cumulative effect. So in this case, you are going to analyze the status of nutrients in soil, and there are many objectives of soil fertility evaluation. Why we want to evaluate soil fertility? The first thing is that we can decide which crop we can grow. If we know the status of nutrients, then we can select the crop. We can decide the quantity of nutrient to be added. So there are several purposes of soil fertility evaluation. So now you can see the objectives, why we are going for evaluation of soil fertility. So you can see Roy and co-workers, they have given the list. First objective is to assess the nutrient status of soil crop system, quantify the ability of soils to supply nutrients from plant growth. This is objective number 1 for soil fertility evaluation. Number 2, diagnose suspected nutrient imbalances. There can be certain imbalances also. If any imbalance is there, then we can correct the imbalance. Monitor effects of management of crop nutrient status. For example, you have several crop rotations. You have tillage also. You have herbicide application. So you can see how these management practices can affect the nutrient status of the soil. So management includes your date of sowing, rate of seed, rate of fertilizer, or cultural practices, weed management. All are management practices. All agronomic practices are management practices. So how they can affect the nutrient status so that some corrections can be made. Provide basis for making fertilizer recommendations for. So definitely if you get the result of soil fertility evaluation, then fertilizer recommendations can be given. You will learn later how fertilizer recommendations are given. So what will it do? Improve the yield and quality. Improve the fertilizer use efficiency. So once the fertilizer use efficiency is improved, that means losses of nutrients will decrease, number 1. And number 2, environmental pollution will be minimized. And number 3, income of the farmer will increase because less will produce more. If we increase the fertilizer use efficiency,
That means less fertilizer will produce more. So pollution will be less, your pollution of different kind will be less, and your economics will be in the favor. You can earn more money. Decreasing impact on water, air quality, climate change, assesses availability of toxic elements, and improves soil quality. So there are many purposes of evaluating soil fertility. Evaluating fertility means knowing the status of the nutrients in soil. Is it fine? Any point? Yes, sir, it's fine. Now, friends, this is a summary. I prepared this summary. What are different approaches? What are different methods for evaluation of soil fertility? So it is not that today we have very sophisticated instruments, sophisticated techniques. Now sensors have come. Number of sensors have come that can know the fertility status. But you see over years with the time, how people evaluated fertility. So this is just kind of history also, and kind of methods which are available for evaluation of soil fertility. So first one you see, first method of evaluation of soil fertility is visual plant diagnosis. Just we go to the field and we see how plants are growing. For example, by your eyes also, by your visual observation also, you can see the growth of the crop. You can judge, okay यार इस फसल की तो बढ़वार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है. किसी फसल में आप देखेंगे कि पौधे छोटे रह गए, plants are smaller, less number of leaves, less branches, less trimming, पत्तियों की संख्या भी कम है. तो you can judge the growth of the crop through visualization. So in this case, there may be some deficiencies. If your plants are not showing any symptoms, that means your soil is fine. Soil is good, it is giving good growth of the plant. But sometimes there may be bad growth, there may be poor growth, and poor growth will be reflected in symptoms. Different deficiency of different nutrients will give you different symptoms, isn't it? So that is why these symptoms can also guide us that this particular soil may be deficient in nitrogen, phosphorus, and symptoms of almost all the nutrients for different crops have been defined. So for example, the symptoms first may appear on old leaves. So if the symptoms appear on old leaf, we can say that it may be due to deficiency of nitrogen, phosphorus, potassium, etc. If symptoms first appear on young leaves, so we can guess that it may be because of iron deficiency, it may be because of sulfur deficiency, or it may be because of calcium or magnesium deficiency. So this is known to us. So we can judge the symptoms, and then when they are on the older leaves, how to make the difference, how it is for nitrogen. Nitrogen, we know that it is yellowing of the leaves. For phosphorus, it is the leaf become more dark green. Leaf become more dark green with purple tinge. Purple discoloration is there in phosphorus deficiency on the lower leaves. Then comes your potassium. In potassium, you have marginal firing and tip burning. Brownish margins become your brownish as somebody has burnt it. ऐसा लगता है पत्तियां जल गई. जो किनारे होते हैं ना, आपने देखा होगा कभी पोटेशियम की डेफिशिएंसी. So we can get some idea. We can get some idea. Okay, this soil is deficient in phosphorus. This may be deficient in nitrogen. By seeing the deficiency symptoms, we can get some rough idea, not the exact idea. Because sometimes this nutrient deficiency approach can have limitations also. It may have some constraints also. Many times the deficiency symptoms of one element can become toxicity symptom of another element. See, I deal with rice crop. So in rice crop, many times, see the symptoms of zinc deficiency. Symptoms of zinc deficiency are similar to the toxicity of aluminium. So how we can distinguish? So they have also got limitations. And also, okay, we know that our crop is deficient in nitrogen. Based upon symptoms, I can identify, okay, I got success in identifying the deficiency of a particular nutrient. Now question comes,
If my maize or my rice is deficient in nitrogen, then how much nitrogen should I use? How much nitrogen should I use? So these deficiency symptoms will not guide us the quantity of nutrient to be applied. Did you get this point? Suppose your soil is deficient in potassium, you have grown the wheat crop, and you have observed that wheat crop is having deficiency of potassium. Fine, your soil is low in potassium supply, therefore the wheat is suffering from potassium deficiency. But can it help us to find out the quantity of potassium that should be applied to the soil to overcome this problem? It is not. It cannot guide us. That means this visual plant diagnosis or deficiency symptoms are just a very minor tool that can just guide us, but they cannot tell us the exact quantity of the nutrients to be applied to correct this deficiency. इस कमी को पूरा करने के लिए कितना न्यूट्रिएंट डालना ये हमें नहीं बता सकता. तो मैंने इसके ये पहली अप्रोच है सॉइल फर्टिलिटी इवेलुएशन के. इसका फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी क्विक, आप जाओ खेत में देखो, सिम्टम आइडेंटिफाई करो, सो क्विकली आपको पता लग जाता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के. आपको जाना है, ऑब्जर्वेशन लेना है, ठीक है भाई ये हमारी फास्फोरस में कम है, ये नाइट्रोजन में कम है, जिंक में कम है, ठीक है, अच्छा है, आइडिया लग गया हमको. लिमिटेशन ये है इसकी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई इससे हमें पता नहीं लगेगा कि कितना न्यूट्रिएंट हमको डालना है. तो ठीक है, एक अप्रोच है नाम के लिए. इज इट ओके दिस विजुअल प्लांट डायग्नोसिस? पहली ये हमारी अप्रोच है सॉइल फर्टिलिटी इवेलुएशन की. ठीक है डॉक्टर विकास, कोई क्वेश्चन? नो सर. कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है. आसान है ये, थोड़ा एक अरेंज किया है एक साथ. यस सर. दूसरा है प्लांट एनालिसिस. ठीक है, हमको आइडिया लग गया कि भाई हमारे न्यूट्रिएंट्स some deficiency is there. Now हमने ठीक है तुक्का मारा, कई बार तुक्का भी मारते, धोखा भी हो जाता है. Many times our observation may be wrong for deficiency. तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट हायर अप्रोच इज लेट अस एनालाइज द प्लांट. उसकी लैब में ले जाके उसका हम स्टेटस देखते हैं, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है. सो इसका स्टेटस देखने की भी दो मेथड है. फॉर प्लांट एनालिसिस यू कैन सी रो नंबर 2, दूसरी लाइन में प्लांट एनालिसिस लिखा हुआ है. इसके भी दो मेथड है. एक तो है रैपिड टिश्यू टेस्ट. रैपिड टिश्यू टेस्ट होता है, और दूसरा होता है टोटल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट. दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है टोटल एनालिसिस, इसमें हम परसेंटेज में न्यूट्रिएंट निकालते हैं कि भाई हमारे दाने में 1% नाइट्रोजन थी, हमारे जो लीफ में 2% नाइट्रोजन थी, हमारा जो ये था पत्ती स्टेम था, हमारा स्टेम में 0.1% सल्फर थी. तो परसेंटेज में मीन्स क्वांटिटेटिवली हम इसको निकाल लेते हैं. एनालिसिस करते हैं लैब में, मेथड्स अवेलेबल हैं, उनसे हम एनालिसिस करते हैं और हम पता लगा लेते हैं कि कितनी परसेंटेज में न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर है. एक है रैपिड टिश्यू टेस्ट, ये होता है क्वालिटेटिव टेस्ट. क्वालिटेटिव टेस्ट मींस इसमें आपको कंसंट्रेशन पता नहीं लगेगा, इसमें नंबर या न्यूमेरिकल पता नहीं लगेगा कि 2% है 1% है. ये क्वालिटेटिव टेस्ट में आपको रिलेटिव पता लग जाएगा कि 3 क्लास होते हैं इसमें, लो, मीडियम, हाई. जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस है प्लांट में लो है, मीडियम है, हाई है. इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इस रैपिड टिश्यू एनालिसिस को कैसे करते हैं. इसके टेस्ट अवेलेबल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सारे एलिमेंट्स के रैपिड टिश्यू के टेस्ट अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी बता दूं ब्रीफ में आपको जैसे मान लो फास्फोरस की डेफिशिएंसी देखनी है, तो प्लांट के टिश्यू लिए, उसका पीटियोल लिया, पत्ती का ब्लेड लिया, उसको एसीटोन में एक आपका एसीटोन में डाल दिया, उसको रगड़ लिया, घिस लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया. एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट को छान लिया, फिल्टर कर लिया, और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. थोड़ा सा उसमें स्टेनस क्लोराइड डाल दिया. स्टेनस क्लोराइड डालने से उसका रंग नीला हो जाता है. अगर हल्का नीला हुआ तो वो लो है, और मीडियम नीला हुआ तो वो मीडियम, मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा, कलर चार्ट भी आते हैं. फिर अगर डीप ब्लू है तो उसमें सफिशिएंट है. मतलब हल्का रंग देख के, मीडियम रंग देख के और गहरा रंग देख के. आयरन के टेस्ट में लाल रंग आता है, हल्का लाल
मीडियम लाल और डीप रेड। तो ऐसे करके ये टिश्यू टेस्ट आते हैं, तो इनकी भी थोड़ी बहुत वैल्यू है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये टेस्ट हमें कंसंट्रेशन नहीं दे सकते। इस टेस्ट से भी हमें पता नहीं लग सकता कि कितना न्यूट्रिएंट हमें मिट्टी में डालना चाहिए। ये सिर्फ आइडिया देगा हमें रैपिड टिश्यू टेस्ट, लेकिन ये हमें गाइड नहीं करेगा न्यूट्रिएंट रेट को। टोटल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो हम क्या करते हैं, प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स में, इनकी टिश्यूज में हम लीफ की या स्टेम की एनालिसिस करते हैं और न्यूट्रिएंट का स्टेटस देखते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्लांट की सैंपलिंग करेंगे, खेत में जाएंगे, पौधा उखाड़ेंगे या काटेंगे, कोई एक पार्ट लेते हैं, प्लांट पार्ट, और स्टेज, किस स्टेज पे आप ले रहे हो, टिल्लिंग स्टेज पे ले रहे हो, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे ले रहे हो, राइपनिंग पे ले रहे हो, अलग अलग स्टेज होती है प्लांट की। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है किस स्टेज पे आप सैंपलिंग ले रहे हो। सो प्लांट सैंपलिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस में अलग से डिस्कस करूंगा इसको। सो अभी आप ये देख लीजिए कि टोटल एनालिसिस से आपको क्या कर सकते हैं, हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हमें पता लग गया कि नाइट्रोजन टिल्लिंग स्टेज में राइस की चौथी पत्ती में नीचे से इतने परसेंट नाइट्रोजन थी या इतना पीपीएम नाइट्रोजन थी। तो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं इसका 3 तरह से। एक तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे सोयल में क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है, ऐसे ही प्लांट में क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है। मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे आगे आएगा वो मसला। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बेस पे भी हम जो है न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक का केस है, तो जिंक का क्रिटिकल स्टेटस प्लांट में 20 पीपीएम है। अगर 20 पीपीएम से कम है इसका मतलब डेफिशिएंट है, 20 पीपीएम से प्लांट में ज्यादा है तो सफिशिएंट। तो इस तरह से हमें ये भी, इससे भी हमें आइडिया ही लगता है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है या सफिशिएंट है। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं लगता कि हम न्यूट्रिएंट कितना डालें। हमने लैब में सैंपल लेके एनालिसिस कर ली, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सारे न्यूट्रिएंट्स की कर ली, लेकिन स्टिल अगर हमें फर्टिलाइजर डालना है, then we really do not know how much fertilizer should be added, how much nutrient should be added. तो खैर this is useful approach, but it has limitation that it cannot guide us to supply the quantity, to know the quantity of nutrient to be supplied. तीसरा है, इसका भी एडवांस वर्जन आ जाता है कि नहीं भाई ठीक है, अब हम सोयल टेस्टिंग करते हैं, मिट्टी की जांच करते हैं। सोयल टेस्टिंग को सोयल एनालिसिस भी बोलते हैं, कुछ लोग सोयल केमिकल एनालिसिस बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोयल टेस्टिंग एनालिसिस। सो सोयल टेस्टिंग एनालिसिस में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आप देखिए, सैम्पलिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल, ये मैं डिस्कस करूंगा। फिर जब सोयल सैंपलिंग होगी, लैब में सैंपल हम ले आए, उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। मिट्टी के अंदर से जो रस है न्यूट्रिएंट्स का, उसको बाहर निकालते हैं। फिर निकालने के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद हम उसके एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, मिट्टी की जांच के रिजल्ट मिल जाते हैं कि इतना एनपीके, इतना कार्बन, इतना पीएच, इतना ये, इतना वो, सारी चीजों का हमें पता लग जाता है। फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये मीडियम रेंज में आ रहा, ये हाई रेंज में आ रहा, किस रेंज में आ रहा। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है कि ये हमें ये तो बता देगा कि सोयल में फर्टिलिटी स्टेटस इतना है आपका, लेकिन सोयल टेस्टिंग अकेले कभी हमें गाइड नहीं कर सकती कि कितना न्यूट्रिएंट डालना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी एडेड। तो इसकी ये लिमिटेशन है। अब और आगे चलते हैं। चौथी अप्रोच सोयल फर्टिलिटी इवेलुएशन की है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करके भी देखते थे लोग, थोड़ा सैंपल ले आए मिट्टी का लैब में और उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ देखी, सो उसको इनडायरेक्टली डिफरेंट न्यूट्रिएंट के स्टेटस से रिलेट करते थे लोग। हालांकि ये अप्रोच अब खत्म होगी, इसको कोई नहीं करता, ये सिर्फ हिस्ट्री में है। इनका नाम है जैसे एजोटोबैक्टर प्लेग टेक्निक है, एस्परजिलस नाइजर टेस्ट है, कनिंग-गामेला प्लेग मेथड है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये मेथड दे आर ऑब्सोलीट, बट हिस्ट्री में लोग इनका भी यूज करते थे सोयल फर्टिलिटी इवेलुएशन। सोयल फर्टिलिटी इवेलुएशन मतलब न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस देखने में। फिर 5वीं जो अप्रोच आई है, ये मॉडर्न अप्रोच है, इसको एनडीवीआई कहते हैं, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। सो इसका यूज काफी आजकल हो रहा है, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसका यूज हो रहा है आजकल, काफी ये नाम कमा रही है, और इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में जानना होगा, ये नई अप्रोच है। फिर
जो सबसे पुख्ता, सबसे मजबूत और सबसे सॉलिड और सबसे यूजफुल अप्रोच है वो है कंडक्टिंग फील्ड एक्सपेरिमेंट। अलग अलग क्लाइमेट है हमारी, अलग अलग सोयल है, अलग अलग कंडीशन में न्यूट्रिएंट स्टेटस भी अलग अलग होता है। तो हर तरह की सोयल में एक एक खास एरिया में उसमें हमें फील्ड एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। उसमें अलग अलग फर्टिलाइजर के लेवल देखने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए और उनकी रेस्पॉन्स देखनी चाहिए अलग अलग मिट्टी में। और इसके बेस पे हम रेस्पॉन्स इक्वेशंस डेवलप करते हैं। उसके आधार पे आपको जो है वो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन अगर करेंगे तो इसमें एग्जैक्ट हमें पता लग जाएगा कि ऑप्टिमम लेवल न्यूट्रिएंट का हर तरह की सोयल के लिए क्या क्या होगा। सो इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स पे, हाउ इट इज यूजफुल। बट फाइनली ये सारी अप्रोच है, इनमें सबसे यूजफुल जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट है। नंबर 1 फील्ड एक्सपेरिमेंट करके ही जो पुरानी सॉइल टेस्टिंग की लैब है सबके पास रिग्रेशन इक्वेशंस होती है, उसके बेस पे वो न्यूट्रिएंट बता देते हैं भाई इतना न्यूट्रिएंट आपको अप्लाई करना है। और नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट इज रिमोट सेंसिंग, एनडीवीआई अप्रोच। आजकल जो फिजिक्स वाले आ गए ना, जैसे ड्रोन को छोड़ दिया, पत्ती से रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ उसको पढ़ लिया, फिर उसमें इस चीज की कमी है, आजकल बड़े माइक्रो लेवल पे लोग चले गए। इसके अलावा कुछ और सेंसर्स आ रहे हैं। आईआईटी, हमारे आईआईटी कानपुर है, उन्होंने सेंसर बनाया जो आपको मिट्टी आप उसमें रख दो, वो अपने आप जो लाइट का और टेम्परेचर का कुछ उसमें नॉलेज उन्होंने इन्फ्यूज की है, उसमें डाली है, जिससे वो डायरेक्ट आपके बिना किसी केमिकल एनालिसिस के स्टेटस बता देते हैं। लेकिन उनको रिकैलिब्रेशन, उनकी रीटेस्टिंग करने की जरूरत है। 2-4 नई नई चीजें आजकल सॉइल टेस्टिंग में आ रही हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन पे चर्चा कर लेते हैं। 2-3 पे चर्चा कर लेंगे, फिर हम इसको और 15-20 मिनट कर लेते हैं। क्यों विकास, 15 मिनट ठीक रहेगा? और 15-20 मिनट आप, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बैठा रहूंगा मैं, लेकिन आपका देखना है। सो फर्स्ट अप्रोच ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन इज योर डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपेयरिंग ऑन ओल्डर लीव्स। पुरानी पत्तियों पे आ रहे हैं, इनकी अलग अलग होते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पे, कहीं ना कहीं आपको पहले भी आपने पढ़ रखी होंगी ये चीजें। जैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, क्लोरोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम लीफ टिप्स, लीव्स टर्न येलोइश, पूरी पत्ती पीली हो जाती है। फास्फोरस डेफिशिएंसी में डार्क ग्रीन कलर हो जाता है और उस पर रेडिश रेडिश या पर्पल कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। छोटे छोटे उस पर पर्पल रंग के साइडों में निशान बन जाते हैं। के डेफिशिएंसी में ब्राउन नेक्रोटिक लीफ मार्जिन, जो लीफ की पत्ती के मार्जिन होते हैं, किनारे होते हैं, उनका ब्राउन कलर हो जाता है, फिर बाद में काला रंग हो जाता है। मार्जिनल फायरिंग और टिप बर्निंग मैंने बताया था, वो सिम्टम होते हैं इसके। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में स्ट्राइप क्लोरोसिस होती है बिटवीन वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन, ये भी लोअर लीफ पे आता है। क्लोरीन डेफिशिएंसी येलो नेक्रोटिक स्पॉट्स डिस्टिंक्ट बाउंड्री, तो कोई दिक्कत नहीं क्लोरीन की। मोलिब्डेनम भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। लाइट ग्रीन नेक्रोटिक स्पॉट्स लीव्स स्पॉट्स, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पुरानी पत्तियों पर आती है। पुरानी पत्तियों पर आती है, इसका मतलब यह है कि दे आर मोबाइल इन द प्लांट, दे आर मोबाइल इन द प्लांट सिस्टम। तो ऊपर की पत्तियों में नीचे की पत्तियों से ट्रांसलोकेट हो जाता है, तो इसलिए नीचे की पत्तियों में कमी हो जाती है। लेकिन अगर ये कमी बनी रहती है, इफ इट कंटिन्यूज फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स, देन सारी पत्तियों पे सिम्टम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ये नीचे की पत्तियों पे ही कन्फाइंड रहेंगे। ये डेफिशिएंसी अगर लगातार बनी रहेगी तो ये प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएंगे। आपका नाइट्रोजन की कमी से पूरा पौधा पीला हो सकता है। एंड सम सिम्टम्स फर्स्ट अपेयरिंग ऑन यंगर लीव्स, पहले यंगर लीव्स में आते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट नॉन मोबाइल होता है या लेस मोबाइल होता है। ये लोअर लीफ से या लोअर पार्ट से अपर पार्ट में नहीं पहुंच पाता। सो डेफिशिएंसी कम्स इन यंगर पार्ट्स और young leaves. Like iron deficiency. Iron deficiency symptoms are quite easy to remember. This is yellowing of leaves, uniform chlorosis of the leaves, and once in the beginning it is yellow in color, then with time it converts white. The color will convert exactly to white, and from white it will become brown. Iron deficiency symptoms, quite distinctive
iron deficiency symptoms. Number 2, copper deficiency, youngest leaf with white, withered, and twisted tip. Calcium deficiency, yellow leaf. So overall, you can see there these are deficiency symptoms for nutrients, and they are coming on the younger leaves. They do not come first on the older leaves. Now, plant analysis, I was talking to you, there are two approaches, qualitative and quantitative. Qualitative is rapid tissue test. It does not give us exact value of the nutrient concentration. It gives us just idea. Just, for example, I told you about the colors. Just for example, qualitative data. Qualitative data means he's a fat man. Oh, Dinesh मोटा आदमी है, Dinesh पतला आदमी है. वो बिल्ली मोटी है, वो काली है, वो लंबा है, वो छोटा है. These kind of qualitative traits are there. So इसमें quantity नहीं होती. अगर मैं कह दूं वो 6 feet tall है, तो ये आपकी quantitative measurement होगी 6 feet. तो इसी तरीके से ये रैपिड टिश्यू टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है. So what advantage is that quickly identify the nutritional status of plant. It takes very less time, tells apparent nutrient insufficiency. या तो insufficient होगा या sufficient होगा, लेकिन apparent होगा means sure नहीं हुआ. Apparent का मतलब होता है आभासी. आपको आभास होगा कि ये insufficient है, but सच्चाई आपको पता नहीं लगेगी. Apparent का मतलब ये होता है. Done directly in field on extracted sap of leaves. सीधे पत्तियों का जो सैप होता है, जो जूस होता है, उसको निकाल लिया जाता है और उस पर आप खेत में भी कर सकते हैं. कलर इंटेंसिटी यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट. अलग अलग कलर डेवलप किए जाते हैं और उससे हमें इंटेंसिटी से पता लग जाता है कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा ज्यादा है. लेस टाइम एंड लो कॉस्ट. प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिएंट स्टेटस. ए गाइड रादर देन एज ए मेन स्टेप फॉर न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन. सिर्फ गाइड कर सकता है कि भाई ये डेफिशिएंट है, इससे हमें ये पता नहीं लगेगा कि कितना न्यूट्रिएंट हमको डालना है, हाउ मच सप्लाई इज टू बी मेड. इसमें करते क्या है कि ऐसा पार्ट लेते हैं प्लांट का जो ज्यादा सेंसिटिव हो डेफिशिएंसी के लिए, विच इज मोर सेंसिटिव. तो लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि जो पीटियोल होते हैं, पत्ती के व्रंत होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट आमतौर पे कम होता है. तो ठीक है यार, उन्हीं का टेस्ट कर लो पहले. सो जनरली लीफ पीटियोल्स आर यूज्ड. लीफ सैंपल शुड बी कलेक्टेड रैंडमली. So random, ये तो statistician बोलता ही है. Specific part of the leaf is chopped and extractants used to get solution. जो पत्तियां आपने इकट्ठी की हैं उनको चॉप कर लो, काट लो, और जो लैब में वो होता है ना, पेसल एंड मोर्टल, खरल और मूसली होती है ना, वो गांव में ईमान जिस्ता होता है जिसे कूटते हैं ऐसे. तो उससे आपको कूट लो, उसमें थोड़ी सी एसीटोन डाल दो. एक्सट्रैक्टेंट होता है वो सारे जो सैप होता है, उसका जूस होता है, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है. एंड देन रिएजेंट्स आर एडेड. आयरन का करना तो अलग रिएजेंट डालना पड़ेगा, फास्फोरस का करना तो अलग अलग रिएजेंट होते हैं इसमें. रिएजेंट का मतलब केमिकल्स जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो होते हैं इसमें. एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर मैच्ड विद द कलर्स गिवन इन द चार्ट. और चार्ट इसके होते हैं ऑलरेडी, उनसे आप कलर की इंटेंसिटी देख सकते हैं. एज पर कलर शेड्स न्यूट्रिएंट ग्रुप्ड एज वेरी लो, मीडियम एंड हाई. सो अलग अलग ग्रुप इनके न्यूट्रिएंट्स के हो सकते हैं, वेरी लो, मीडियम एंड हाई. द रैपिड टिश्यू टेस्ट वुड पे फॉर रेक्टिफाइंग द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम फॉर क्विक रिकवरी. अगर कई बार आपके पास टाइम नहीं है, प्लांट टेस्टिंग का, सॉइल टेस्टिंग का फैसिलिटी नहीं है, तो निश्चित तौर पे अगर आपको आइडिया लग गया तो थोड़ा बहुत आप ज्यादा नहीं डालेंगे तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट तो आप डाल ही सकते हैं, जिससे जो लॉसेस होने वाले हैं उनमें कमी लाए जा सके. However, the quantitative estimation of both plant and soil for nutrients concentration will be more useful and economic for applying fertilizer. अब ये बताया जा रहा है कि इनसे बेहतर तरीका है कि आप you go for quantitative test, means plant chemical analysis and soil chemical analysis, which would be more useful than rapid tissue test. So इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, इसके प्लस हैं, इसके माइनस भी. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ कि भाई नाइट्रोजन का रैपिड टिश्यू टेस्ट करना, ये बड़ा सिंपल टेस्ट होता है. आप लोग अपनी लैब में कर सकते हैं. ये कुछ नहीं, अगर मान लो ज्यादा फैसिलिटी ना हो आपके पास, तो सिंपल रैपिड टिश्यू टेस्ट करके स्टूडेंट को प्रैक्टिकल आप करा सकते हैं. उनको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें प्रैक्टिकल में. और बड़ा सिंपल है, पत्ती लाओ, काटो और एक उसको पीस पास के और एक्सट्रैक्ट निकाल लो और आपका
टेस्ट ट्यूब में डाल दो और एक रिएजेंट डाल दो, कलर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और रिएजेंट भी ज्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते वाले रिएजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हमें बनाना है 1% डाइफिनाइल अमाइन इन कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड 100 यूनिट होगा और 1 यूनिट आपका डाइफिनाइल अमाइन होगा। सो इससे एक सॉल्यूशन बना लेंगे। स्मॉल बिट्स ऑफ लीफ और पीटीओल आर टेकन इन ए पेट्री डिश में ले लो, या जो पेसल एंड मोर्टार होता है लैब में उसमें ले लो। चाइनीज बर्तन होते हैं ना कप की तरह, उसमें ले लो। पेट्री डिश एंड ए ड्रॉप ऑफ 1% डाइफिनाइल इज एडेड। सिर्फ एक ड्रॉप उसमें ऐड करनी है। द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू कलर इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रोजन का पता लग जाएगा। द डिग्री ऑफ कलरेशन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दैट लीफ। डार्क ब्लू है तो सफिशिएंट नाइट्रोजन, लाइट ब्लू है स्लाइटली डेफिशिएंट, एंड नो कलर मींस हाई डेफिशिएंट, हाईली डेफिशिएंट। सो इट गिव्स यू इंडिकेटर। इसमें तो खैर डायरेक्ट उसी में डाल दें, लेकिन इसको आपको बेहतर होगा इस एक्सट्रैक्ट को आप टेस्ट ट्यूब में ले लें और फिल्टर कर लें इसको, तो उसमें क्लीन कलर दिखाई देगा आपको। क्योंकि इसमें पत्ती का रंग जो है ना हरा होता है, वही ड्रॉप डाल दी तो उसमें नीला कलर देखने में दिक्कत आएगी आपको। ये कंप्लीट मेथड्स मेरे पास हैं। इसी तरीके से फास्फोरस का है। इसमें रिएजेंट होता है अमोनियम मोलिबडेट सॉल्यूशन एंड स्टेनस क्लोराइड। 8 ग्राम अमोनियम मोलिबडेट लिया, 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में 8 ग्राम मोलिबडेट डाल दिया, एंड 126 ml ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इसको फिर 300 ml बना लेते हैं। बाकी जो कमी पड़ेगी उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दें, तो ये स्टॉक सॉल्यूशन बन जाता है। और इसको अंबर कलर्ड बोतल रखते हैं। 2 तरह की बोतल लैब में होती है, एक हमारी व्हाइट होती है नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, एक होती है अंबर कलर, मीन्स अंबर के रंग का होता है, वो थोड़ा सा आपका डार्क ब्राउन कह लो उसको, या डार्क पीला, बहुत डार्क पीला कर दो तो वो अंबर कलर बन जाता है, उसमें रख देते हैं। उससे फोटो डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होता। So this stock solution is kept in an amber colored bottle, and at the time of use it is taken and diluted in the ratio of 1:4। इसको और डाइल्यूट करना पड़ेगा जब आप इसको यूज करेंगे। फिर क्या करना, 80 टीस्पून फुल ऑफ फ्रेशली चॉप्ड लीफ, 1 चम्मच पत्ती ले ली आपने, आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब, एंड 10 ml ऑफ अमोनियम मोलिबडेट रिएजेंट इज एडेड एंड केप्ट फॉर फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए इसको रख लीजिए, शेकिंग कर दीजिए, एंड पिंच ऑफ स्टेनस क्लोराइड इज एडेड। Color development, dark blue, sufficient phosphorus, bluish green, slightly deficient, and no color, highly deficient। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था भाई, इस तरह के ये टेस्ट होते हैं, रैपिड टिश्यू टेस्ट। इसके बाद आता है प्लांट केमिकल एनालिसिस, प्लांट एनालिसिस। सो प्लांट एनालिसिस में हम टोटल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं। कितना नाइट्रोजन है प्लांट में, कितना फास्फोरस, कितना पोटाश, सारे न्यूट्रिएंट्स का देखते हैं। तो इसके 4 स्टेप हैं हम प्लांट केमिकल एनालिसिस जब करते हैं। पहला है प्लांट सैंपलिंग। तो प्लांट सैंपलिंग में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सैंपल तो हम फील्ड से लाएंगे, फिर लैब में लाके उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, सैंपल को तैयार करना पड़ता है एनालिसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं सैंपल प्रिपरेशन। फिर एनालिसिस करते हैं और फाइनली इंटरप्रिटेशन। आपने एनालिसिस कर ली, आपके रिजल्ट भी आ गए। सो व्हाट डज इट मीन, जो रिजल्ट आपको मिले इनका मतलब क्या होता है, उसी को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सो आफ्टर एनालाइजिंग द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इट इज डिजायरेबल इन डिजायरेबल प्लांट पार्ट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट कैन बी मेड बाय 3 डिफरेंट वेज। आपने कंसंट्रेशन हमको पता लग गया, अब हम इसको इंटरप्रेट करने, हमें पता लग गया कि राइस के शूट में 2% नाइट्रोजन थी, सपोज करो राइस के शूट में 2% नाइट्रोजन थी, तो इसका मतलब क्या, हम कैसे समझे इसको। सो पहला है क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो मैं सिर्फ राइस का केस दे रहा हूं, लेकिन जो बाकी क्रॉप है, आपकी मेज है, व्हीट है, या आपकी पल्सेस हैं, ऑयल सीड है, सब की सब क्रॉप में क्रिटिकल कंसंट्रेशन का पता लग चुका है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन सी स्टेज में कौन से न्यूट्रिएंट का कितना लेवल, कितना कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर होना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। वी नीड टू मैच our result with that information। हमें कोई नई खोज नहीं करनी है, जो ऑलरेडी नॉलेज है उसी से हमें अपने रिजल्ट को मैच करना है। तो इसके लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखना पड़ता है। सबको पता है कि जिंक का मक्का की पत्ती में आपके नी हाई स्टेज पे
जिंक का क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए मिनिमम, ये अवेलेबल है डेटा, सिर्फ हमें उस लेवल को देखना उससे कम है हमारा या ज्यादा है, सो वी कैन डिसाइड वेदर इट इज हैविंग डेफिशिएंसी और सफिशिएंसी। सो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के आधार पे भी हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट रेशियो आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, और क्लोरोफिल मीटर एंड लीफ कलर चार्ट का भी यूज हम कर सकते हैं। नाउ टोटल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट, सबसे पहले हम प्लांट सैंपलिंग करते हैं जैसे मैंने बताया था। सो सैंपलिंग डन फॉर स्पेसिफिक पार्ट, जब हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं तो एक तो स्टेज ऑफ सैंपलिंग इज इम्पोर्टेंट, किस स्टेज पे हम सैंपलिंग कर रहे हैं। नॉर्मली सीरियस में जैसे हम करते हैं टिल्लिंग स्टेज पे, टिल्लिंग स्टेज के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है जिसको हम पेनिकल इनिशिएशन कहते हैं, फिर हम इसकी फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं, और एग्रोनॉमी में तो हम लोग हार्वेस्ट पे ही करते हैं कि हार्वेस्ट में कितना दाने में गया, कितना भूसे में गया, कितना अपटेक हुआ न्यूट्रिएंट का। लेकिन एग्रोनॉमी वाले कुछ लोग अलग अलग स्टेजेस पे भी करते हैं। दूसरा, किस प्लांट पार्ट को लिया जाए, जैसे टिल्लिंग हो रही है आपकी, तो टिल्लिंग के टाइम पे क्या हम पूरे शूट को काट लें, क्या हम तना पत्ती सबको काट लें, क्या हम सिर्फ पत्तियों को लें, क्या हम सिर्फ तने को लें, तो ये प्लांट पार्ट कौन सा यूज करना है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हर क्रॉप के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, बिल्कुल गाइडलाइन उपलब्ध है कि आप अगर गेहूं में या धान में या किसी भी फसल में आप सैंपलिंग करना चाहते हो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के लिए, तो स्टेज वाइज स्टेजेस दी हुई हैं, और हर न्यूट्रिएंट के लिए कौन कौन सा प्लांट पार्ट यूज करना है वो भी दिया हुआ, हमें सिर्फ उससे देख के करना है, फिर जो हमारे रिजल्ट आएंगे उनको हमें उससे मैच करना है। सो सैम्पलिंग इज डन फॉर स्पेसिफिक प्लांट पार्ट एट ए ग्रोथ स्टेज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रिटिकल वैल्यूज। सो जो प्लांट पार्ट जिनमें हम उम्मीद करते हैं कि इनमें कमी होगी इसकी, उस तरह का सेंसिटिव पार्ट लेते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉप। नेक्स्ट इज द कंपोजिट सैंपल शुड बी अबाउट 200 to 500 ग्राम फ्रेश वेट। अब एक प्लॉट, जैसे हमारे एग्रोनॉमी में प्लॉट होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, तो एक प्लॉट से कम इतना हम सैंपल लें जिसका वजन 200 से 250 और 500 ग्राम तक हो। हालांकि स्टेज पर डिपेंड करेगा और कितना प्लॉट साइज है, तो 200 ग्राम तक फ्रेश वेट बेसिस पे कम से कम सैंपल साइज लिया जाए। अब सैंपल हमने ले लिया, वहां से फील्ड से हम काट लाए, लीफ काट लाए या पूरे पौधे को काट लाए, वट एवर सैंपल वी वर सपोज टू कलेक्ट, उसको लाने के बाद अब लैब में हमें उसकी प्रिपरेशन करनी, तैयारी करनी। तो सबसे पहले हम उसकी धुलाई करते हैं। धुलाई करना जरूरी होता है, ये हम डिस्टिल्ड वाटर से करनी चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर से करनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में आपके डस्ट आ जाती है, कभी फर्टिलाइजर छिड़का किसान ने तो पत्तों पे फर्टिलाइजर हो सकता है। सो सैंपल की धुलाई करना है साफ पानी से, फिर उसको एयर ड्राई करना है, एयर ड्राई करना है जिससे कि जो मॉइस्चर लगा हुआ है वो सूख जाए, और इसको आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन ड्राइंग भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब सैंपल सूख जाए तो उसकी हमें ग्राउंड करते हैं, उसको पीसते हैं। इसके लिए ग्राइंडर मशीन आती है, उनसे ग्राइंडिंग करते हैं, और इसमें कंटामिनेशन ना हो, दूसरे सैंपल ना आ जाए। मशीन को साफ करके हर सैंपल की बारी एक एक करके जब लेते हैं तो मशीन को साफ करें, ऐसा ना हो एक प्लांट का सैंपल दूसरे में मिक्स हो जाए। अब हमने सैंपल भी तैयार कर लिया, पीस लिया उसको, चाहे ग्रेन का सैंपल हो, चाहे लीफ का सैंपल हो, चाहे स्टेम का सैंपल हो, चाहे रूट का सैंपल हो, किसी भी पार्ट का सैंपल हो, उसको हमने फाइनली पाउडर में बना लिया। पाउडर में बनाने के बाद अब हम उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं, उसमें हम एनपीके और बाकी न्यूट्रिएंट्स की टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए अब टेस्टिंग करने के लिए क्या होता है, जो हमारा ये प्लांट मटेरियल होता है, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये एक्चुअल में कार्बन होता है। कार्बन के अंदर आपका कार्बन प्रोटीन की फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होती है, लिग्निन होती है, ऑयल्स होते हैं, इजंट इट? जो आपका पौधा आपने लिया, पत्तियां ली, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक मटेरियल, आप जानते हो इसमें स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, प्रोटीन्स होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्लांट में होते हैं। कोई भारी तो नहीं पढ़ा रहा मैं, भारी तो नहीं बता रहा मैं आपको, कभी ज्यादा भारी पढ़ाई कर रहा हूँ, आसान आसान ही बता रहा हूँ आपको। नहीं सर, ये हमने एमएससी में किया है। हाँ, आपको पता है, ठीक है, खुशी की बात, ठीक है। तो जो आपके ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनको बर्न करना होता है, इनको बर्न करना होता है, इनको ऑक्सीडाइज करना होता है, जिससे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए, वो गल जाए, सड़ जाए,
ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाए या बर्न हो जाए, जिससे कि हमारे एलिमेंट्स जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाए, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए. सो ड्राई और वेट एशिंग इज डन. ड्राई एशिंग एंड वेट एशिंग. ड्राई एशिंग में आपका आजकल बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में ड्राई एशिंग होती थी. उसमें आपके हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन थी उसको बर्न किया जाता था. अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन को बर्न किया जाता है. मफल फर्नेस होता है और उसमें सिलिका क्रूसिबल्स आती हैं. सिलिका क्रूसिबल्स में सैंपल रखा जाता है, परक्लोरिक एसिड रखा जाता है और फिर उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है. तो उससे आपकी कार्बन सारी खत्म हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो जाता है. तो आपके जो एलिमेंट्स है वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं. तो ये तो ड्राई एशिंग होती है, मतलब आश बनाना, राख बनाना, उसको जलाना उसको. दूसरा वेट एशिंग है. वेट एशिंग हम एसिड से करते हैं. एसिड से करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं. तो फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, हमारे एलिमेंट्स जो है सोल्यूबल फॉर्म में आते हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी डन. तो एक तरह से ये आपका न्यूट्रिएंट का एक्सट्रैक्शन हुआ प्लांट टिश्यू से. प्लांट के टिश्यू के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका हमने एक्सट्रैक्शन किया. फिर जो रिजल्ट हमारे आए, रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज कंसंट्रेशन और ड्राई मैटर बेसिस. फिर क्या करते हैं, हम परसेंटेज में लिख सकते हैं कि हमारे प्लांट सैंपल में 2% नाइट्रोजन थी, 1% नाइट्रोजन थी, या मिलीग्राम पर ग्राम कर सकते हैं, विच इज पीपीएम. माइक्रोग्राम पर ग्राम, मिलीग्राम पर केजी, पीपल, डिफरेंट यूनिट्स आर देयर. इनके आधार पे हम कर सकते हैं. अब हमें एनालिसिस करनी है, टोटल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट. ये हमारी हो गई है, मान लीजिए. होने के बाद इंटरप्रिटेशन करना है. तो कल कंटिन्यू करेंगे फिर इंटरप्रिटेशन, ठीक है? या और करूं? ओके सर, ठीक. आपका टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया होगा. यस सर. जी. ठीक है. यस सर. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. सेंड मी योर ईमेल्स सो दैट आई कैन सेंड यू प्रेजेंटेशन. ये भी प्रेजेंटेशन भेज दूंगा मैं आपको. मैं सारे प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा, सारा लिटरेचर दे दूंगा. और उसके बाद भी अगर कभी कोई आपकी जिंदगी में कोई क्वेश्चन आए जो आपकी समझ में ना आए, कोई न्यूमेरिकल हो. इसमें सॉइल फर्टिलिटी का जब प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. अगर उनमें कोई दिक्कत आए, आपको झंझट आए, आगे आपको बिल्डअप करना हो, तो आई विल बी देयर. आई विल स्टैंड बाय यू. सो थैंक यू वेरी मच. सर एक क्वेश्चन थी. हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. सर आपने ड्राई एशिंग और वेट एशिंग का बात किया, तो ड्राई एशिंग में आपने बोला ये पुराने टेक्निक है, तो हाँ. सर वो पुराना मतलब अभी क्यों नहीं यूज करते हाई टेम्परेचर के लिए? एक्चुअल में क्या है कि इसमें आपका जो सिलिका क्रूसिबल आती है, छोटी छोटी होती है, जैसे कप होता है छोटा छोटा. हमने किया है उसमें ड्राई एशिंग. एक तो इसमें आपका बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, और फिर आपने निकालते समय थोड़ा भी गिर गया आपका, तो मेहनत लंबे टाइम की खराब हो जाती है. और सब जगह पे ये हाई टेम्परेचर की कंटिन्यूअस करना पड़ता है. बिजली नहीं रहती तो वो सब सारा खराब हो जाएगा. तो इसलिए ड्राई एशिंग का अब चलन में नहीं है. इट इज नॉट देयर इन कोई. हमने भी वेट एशिंग किया था, वो एसिड से उसको हाँ. एक्चुअली हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, HF करते हैं, मुझे याद आ गया. हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड करते हैं. आप पंतनगर से तो नहीं है? नहीं, मैं BHU से हूँ. BHU से हैं. एक्चुअल में मैं पंतनगर से MSc हूँ. तो वहां पे एक डॉक्टर, डॉक्टर गंगवार थे, डॉक्टर GS गंगवार. वो उस समय एक एक कोर्स था, सॉइल एंड प्लांट एनालिसिस. 2 क्रेडिट का कोर्स होता था पूरा हमारा भी सेमेस्टर. था. हाँ, 2 क्रेडिट का कोर्स होता था हाँ. और पूरा सेमेस्टर वो एनालिसिस ही करवाते थे. तो उन्होंने ड्राई एशिंग करवाई थी हमने, फिर हमने आके यहाँ स्टूडेंट से भी कराई, लेकिन चलती नहीं ज्यादा वो. ड्राई एशिंग करवाया था. और वो क्या करते थे, जब हम टाइट्रेशन करते थे, तो अगर अगर 1 ml ज्यादा पड़ गया आपका टाइट्रेंट, जो एसिड होता है ना, नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, आप टाइट्रेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन की, सल्फ्यूरिक एसिड जरा सा 1 ml ज्यादा पड़ गया तो वो 2 नंबर काट लेता था. और अगर कम पड़ा तो भी 2 नंबर काट. मतलब उनका ये था सिखाने का कि आपको. और एक स्टूडेंट से क्या हुआ, मान लो 10 नंबर का क्विज था और 5 ml या 6 ml ज्यादा पड़ गया, तो उसका माइनस में मार्क आ गया.
आप समझ रहे हैं, जैसे 10 नंबर का कुछ था तो -3 मार्क्स आ गया उसका, वो उसके मिड टर्म में से काट लिया था। उसके मिड टर्म। तो मेरा मतलब ऐसा होता है, विद ऑल रेस्पेक्ट टू हिम, ही वाज वेरी नाइस पर्सन। अब तो हो सकता है दुनिया में ना हो बेचारे। GS गंगवार था, मैं नाम भी पूरा भूल गया उनका। बहुत मेहनत करके और वो सारे प्रैक्टिकल कराते थे, जिसकी वजह से हमें बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छी बात है आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स में। और सर कभी और एक क्वेश्चन हाँ सर, आपने आईआईटी कानपुर की बात की और डिवाइस की, सर भू परीक्षक है ना वो डिवाइस, हाँ तो हाँ, सर उसपे एक था कि 90 सेकेंड में रिजल्ट देता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। अच्छा। मतलब वो उससे कैलिब्रेट करके ऐप में रिजल्ट आता है। तो सर बिल्कुल। ये जो रिजल्ट देता है, क्या ये रिलायबल है? या मतलब एक्चुअल में क्या है, उन प्रोफेसर ने जिसने भी निकाला था उसके साथ सोयल साइंटिस्ट को कोलैबोरेट करना चाहिए था फॉर कैलिब्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट। आप एक्चुअल सॉइल ले लीजिए और उसको जो हमारे एग्जिस्टिंग मेथड है उनसे उनका स्टेटस देख लीजिए, और उसमें देखिए कितनी एरर आती है, कितनी एरर आती है हाँ सेम हाँ सॉइल का उससे क्या है। तो थोड़ी बहुत एरर तो आएगी, देखो ऐसा नहीं है। तो वो कैलिब्रेशन करके उसको आप अगर अच्छा पाते, रिलायबिलिटी है उसकी, तो उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि खर्चा बचेगा हमारा। और जी सर। खर्चा तो बहुत हो रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मिलियन बिलियन हमारे सैंपल टेस्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है। तो मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, जस्ट जस्ट अ मिनट, देन वी कैन हैव डिस्कशन।